Hello everyone, I welcome you all back to my channel that is Top 10 Class ICSE. This is for ICSE Top 10 but 10 standard also but also for 9 standard. 9 standard English and Hindi subjects. Now, today we are looking at a history chapter, the first war of independence that was done in 1857. That is our chapter 1 of history, and this is part 2 of that video. If you haven't seen part 1 yet, so do watch that part. In that part, I have told about political causes, all the political causes I have taken. Now, let's start with this part. Causes of the first war of independence 1857. There were 4 causes and one more, that is political cause, socio-religious cause, economic cause, military cause and immediate cause. Okay, now let's go with socio-religious causes. We have seen political causes. There were many political causes like subsidiary alliance, doctrine of lapse. Now let's see socio-religious causes. Interference with social customs. This was the most socio-religious cause, as it is about social. You can see it, interference with social customs. Now, first was abolition of sati, that was done in 1829. You all must be knowing what is sati. Now, second is Widow Remarriage Act, that is what that was done in 1856. And third is opening of Western education to girls. Now, according to this, this was all done by Britishers, but Indians think that it is wrong and they are interfering with our social customs. They thought like that. That's why this comes under socio-religious causes. Now let's read from our book. Some of the social reforms introduced by the British in India were aimed at improving the conditions of people. मतलब जो ब्रिटिशर्स ने ये इम्प्रूव किया, जैसे उन्होंने एबोलिशन किया, सती के विडो रीमैरिज एक्ट खोला, उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन गर्ल्स के लिए ओपन किया. ये जो था वो पीपल के कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था ब्रिटिशर्स से. However, while introducing such reforms, the feelings of the people were not taken into consideration. मतलब जब ये reforms introduce कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तब जो feelings थे people के, इंडिया के people के, वो उन्होंने consider नहीं किए. The result was that the reforms like abolition of sati that I told was in 1829, introduction of Widow Remarriage Act that was done in 1856, and the opening of the Western education to girls were not welcomed by the masses. Masses means people. People ये मतलब जो लोग थे उन्हें ऐसा नहीं, मतलब उन्हें ऐसा नहीं चाहना था, मतलब उनको ऐसे नहीं करना था. जो ब्रिटिशर्स ने ये विडो रीमैरिज एक्ट, एबोल्यूशन ऑफ सती जो इंट्रोड्यूस कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो इंडियंस को लग रहा था कि ये अपने हमारे सोशल कस्टम्स में इंटरफेयर कर रहे थे. अब apprehensions about modern innovation. People were suspicious of the introduction of modern innovations such as railways and telegraph poles. उस टाइम में जब ब्रिटिशर्स लोगों ने रेलवेज बनाई, टेलीग्राफ पोल्स बनाए, तब पीपल को ऐसे बहुत आश्चर्य हुआ, जैसे सस्पिशियस हो गए पीपल. ऑर्थोडॉक्स इंडियंस डिड नॉट लाइक सिटिंग अरेंजमेंट्स इन द रेलवे कंपार्टमेंट्स. मतलब जो बहुत हायर कास्ट के पीपल थे उन्हें ऐसा लगता था कि हमें लो कास्ट के पीपल के साथ बैठना है रेलवे कंपार्टमेंट्स में, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा. They believed that the British had made such arrangements to defy their caste and religion. उन्हें ऐसे लगने लगा कि ब्रिटिशर्स ने ये अरेंजमेंट इसलिए किए हैं ताकि उनका कास्ट और रिलीजन एक हो जाए और ऐसे अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन ना रहे. ऐसे उन्हें लग रहा था पीपल्स को, इंडिया के लोगों को. ये है बुक का, ये भी सेम ही है, तो यू कैन रीड इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रूड एंड एरोगेंट टुवर्ड्स इंडियंस. जो
ब्रिटिशर्स थे वो बहुत रूड थे। ऑफ कोर्स वो यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आए थे तो वो जेंटल तो होंगे नहीं, वो बहुत रूड थे, एरोगेंट थे इंडियंस के साथ। दे बिलीव दैट दे वर सुपीरियर टू इंडियंस, ऐसे उनको लगता था कि वो गॉड गॉड है इंडियंस के, वो जो कहेंगे वो इंडियंस कर लेंगे। Follow the policy of contempt towards the Indians, dubbed Muslims as cruel and unfaithful, ill-treated and insulted Indians। उन्होंने इंडियंस को बहुत परेशान किया, उन्होंने इंडियंस को इतना परेशान किया कि इंडियंस को लगने लगा था कि ये हमारे लिए इंसल्टेड हैं, ये हमको इंसल्ट करवा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। ये था पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये भी सेम ही है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर रूड एंड एरोगेंट टुवर्ड्स द इंडियंस, दे बिलीव दैट दे वर सुपीरियर टू इंडियंस एंड फॉलो द पॉलिसी ऑफ कॉन्टेम्प्ट टुवर्ड्स इंडियंस। वो पॉलिसी निकाल रहे थे नए नए ताकि इंडियंस को और परेशान कर सके। दे डब द मुस्लिम्स एज क्रूअल एंड अनफेथफुल। सम यूरोपियन ऑफिसर्स इल ट्रीटेड एंड इंसल्टेड इंडियंस, मतलब जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंसल्ट किया, उनके साथ अच्छा नहीं ट्रीट किया। Such acts of unjust discrimination alienated the British from the Indian masses। अब आते हैं करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था उसमें भी करप्शन था। पुलिस एंड पेटी ऑफिसर्स वर करप्ट। कॉमन मैन वॉज लूटेड। कॉमन मैन जो था उसको पूरा लूट लेते थे। ऑप्रेस्ड एंड टॉर्चर्ड, उसे बहुत टॉर्चर करते थे। जो कॉमन मैन था, जो गरीब था, उसे भी बहुत लूट लेते थे और टॉर्चर करते थे। मतलब गरीब के पास तो कुछ पैसा होगा नहीं, फिर भी उसे टॉर्चर करते थे। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, द पुलिस एंड पीटी ऑफिशियल्स वर करप्ट, द रिच गॉट अवे विद क्राइम बट द कॉमन मैन वाज लूटेड, ओप्रेस्ड एंड टॉर्चर्ड। मतलब जो रिच मैन थे वो तो चले गए, मतलब उनको कुछ नहीं हुआ, पर जो कॉमन मैन थे, कॉमन थे, मिडिल क्लास थे या फिर बहुत कम थे, तो उन्हें वो लूट लेते थे और टॉर्चर भी करते थे, टॉर्चर ज़्यादा करते थे। Oppression of the poor. The judicial system was complex. Flogging, torture, and imprisonment of cultivators were common due to their inability to pay land revenue, arrears on rent, and interest on debt। वो जो गरीब है वो लैंड रेवेन्यू तो भर नहीं सकते थे, इसलिए उसे बहुत टॉर्चर करते थे। उन्हें इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में डाल देते थे, जो भी था, तो उन्हें बहुत ही टॉर्चर करते थे। ऑपरेशन ऑफ द पुअर, ये है एक सोशियो रिलीजियस कॉज। ये भी सेम ही है। द कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम इनेबल द रीच टू ऑप्रेस द पुअर। फ्लॉगिंग, टॉर्चर एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ कल्टिवेटर्स फॉर द इनएबिलिटी टू पे एरियर्स ऑन लैंड रेवेन्यू। वो कहाँ से भरेंगे? जो गरीब थे उनके पास पैसे नहीं थे तो वो लैंड रेवेन्यू नहीं भरते थे, रेंट का जो पैसा था वो भी नहीं भरते थे, तो उन्हें टॉर्चर किया जाता था। दस द ग्रोइंग पॉवर्टी मेड द पुअर डिस्परेट एंड लीड देम टू जॉइन अ जनरल अपराइजिंग इन द होप ऑफ इम्प्रूविंग देयर लॉट। एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज, ये है हमारा 6 पॉइंट। डिनाउंस आइडल वर्शिप एंड डब्ड लोकल बिलीव्स एज इग्नोरेंस। After 1813, activities of Christian missionaries increased that feared Indians। मतलब जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो बहुत बढ़ गई थी, जिसके वजह से इंडियन लोगों को डर लगने लगा था। ये है एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज। नाउ लेट्स रीड फ्रॉम बुक। आवर बुक इज हैविंग मोर। द ब्रिटिश वर डिफरेंट फ्रॉम इंडियंस इन रेस, रिलीजन एंड सेंटिमेंट्स। ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स जो थे वो यूरोप से आए थे, तो उनका रिलीजन, रेस सब कुछ अलग था। इन द 18th सेंचुरी द ब्रिटिश शोड अ फ्रेंडली एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडियन रिलीजन्स। मतलब जो 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, इंडियन की तरफ फ्रेंडली एटीट्यूड दिखाया। दे हैड नो पर्टिकुलर zeal for their own religion and the company even acted as a trustee of some Hindu temples. However, in the 19th century, this attitude underwent a change। 19th century में ये जो attitude था, जो हिंदू के रिलीजियस के तरफ फ्रेंडली एटीट्यूड था, वो अब बदल गया था। द ब्रिटिश began to interfere with the local religious and social customs। They denounced idol worship and dubbed local beliefs as ignorance। मतलब जो beliefs थे पीपल के, वर्शिप करते थे जो लॉर्ड को, उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। आफ्टर 1813 there was an increase both in the numbers and activities of the Christian missionaries। क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी तो उसमें ना इंक्रीज हो गया था 1813 के बाद। तो इंडियंस को ऐसे लगने लगा कि ये लोग क्रिश्चियनिटी को और बढ़ाना चाहते हैं।
fears regarding the western education, ये भी एक सोशियो रिलीजियस causes है. Shifting of emphasis from Oriental learning to Western education was doubted. Doubted by whom? Indians. Indian were doubting that मतलब जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ओरिएंटल लर्निंग से वेस्टर्न एजुकेशन, ओरिएंटल लर्निंग मतलब नेशनल, मतलब अपनी इंडिया की लर्निंग जो है उसे वेस्टर्न एजुकेशन में बदलना चाहा. तो उन्हें ऐसे लगने लगा कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन कर रहे हैं उससे जो बच्चे हैं उनके इसमें वो बच्चों को क्रिश्चियनिटी की तरफ मोड़ना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं. जो क्रिश्चियन नहीं है उन्हें भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसे इंडियन लोगों को लगने लगा. इसलिए फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन. पंडित्स एंड मौलवीज सॉ दिस एज एन अटेम्प्ट टू डिस्करेज ट्रेडिशनल लर्निंग. जो पंडित्स थे, जो मौलवीज थे, उन्हें ऐसे लगने लगा कि जो ट्रेडिशनल लर्निंग है इंडिया की उसे वो लोग डिस्करेज कर रहे हैं. They believe that Western education started to convert their children to Christianity. मैंने बताया ना, वेस्टर्न एजुकेशन जो था तो इंडिया के पीपल को ऐसे लगने लगा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो अपने बच्चों को क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट करना चाहता है, इसलिए उन्होंने एजुकेशन में बदलाव लाया है. इसलिए फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन जो था वो बहुत मेन इशू हो गया था. ये भी सेम ही है. यू कैन रीड इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. Taxing religious places. It hurt the religious sentiments of the Indians. Of course, वो टैक्स करने लगे थे religious places, जैसे मंदिर हो या कुछ भी religious हो तो उस पर वो टैक्स लगा रहे थे. You can see a tax word. Such lands were exempted from taxation by previous Indian rulers. मतलब जो पहले इंडियन के रूलर्स थे वो ऐसे रिलीजियस प्लेसेस को टैक्स नहीं लगाते थे, बल्कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने रिलीजियस प्लेसेस पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया. The families which depended on these places did not like this. मतलब जो families थे, जो religious places में पंडित्स थे, मौलवीज थे, उन्हें उनकी जो families थी वो उसके ऊपर निर्भर करती थी. religious places पे वो जाते थे तो उन्हें कुछ दान दक्षिणा मिलती थी, तो उसके ऊपर वो डिपेंडेंट थे. तो उन्हें ये पसंद नहीं आया कि रिलीजियस प्लेसेस पे उन्होंने टैक्स लगा दिया, ब्रिटिशर्स लोगों ने टैक्स लगा दिया. ये भी सेम ही है. रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियंस वर हर्ट बाय द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग लैंड्स बिलोंगिंग टू टेम्पल्स एंड मॉस्क्स. Such lands had been exempted from taxation by previous Indian rulers. मतलब जो पहले के थे उन्होंने कभी भी religious places पे टैक्स नहीं लगाए थे. The families dependent on this land began to propagate that the British were trying to undermine the religions of India. मतलब जो ब्रिटिश जो थे वो रिलीजन जो था अपना इंडिया का, तो उसे वो अनदेखा कर रहे थे. लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी एक सोशियो रिलीजियस कॉज है. द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट चेंज द हिंदू लॉ प्रॉपर्टी. इट इनेबल्ड अ कन्वर्ट फ्रॉम हिंदुइज्म टू अदर रिलीजियस फेथ. मतलब जो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी हुई थी 1850 में, उन्होंने हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसे वो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का नाम था, उसमें क्या किया गया, उन्होंने हिंदुइज्म को अलग अदर रिलीजन से कन्वर्ट करने में मजबूर कर दिया. इट इनेबल्ड अ कन्वर्ट फ्रॉम हिंदुइज्म टू अदर रिलीजन्स टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर. अगर आपको अपने फादर की प्रॉपर्टी चाहिए होगी तो आपको हिंदुइज्म छोड़ना होगा. ऐसे उन्होंने लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट खोला था, हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, जो 1850 में खोला था. The Hindus regarded this as an incentive to give up one's religious faith. हिंदू जो लोग थे उनको ऐसे लगा कि ये लोग गलत कर रहे हैं. ऑफ कोर्स वो गलत ही कर रहे थे. उन्होंने ऐसे एक्ट बना दिया था कि अगर आपको अपने फादर की प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको हिंदुइज्म चेंज करना होगा, हिंदुइज्म में नहीं रहना होगा. ये भी सेम ही है what I read now. A very big thank you to reach the end of this video. In next lecture we will be seeing military causes, and in other upcoming lectures we will be seeing economic causes, immediate causes, and all this chapter we will be finishing. Till then, subscribe so that when I upload my next video you will get the notification first, and hit the like button if you like this video. Thank you all.